ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے سید سہیل رضوی ہیں. آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا دعوت اسلامی کو برا کہتے ہیں اور ان کا رد کرتے ہیں، تو ایسے میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی یہ کہ بہت سارے ان پہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اور اٹھانے والے عوام الناس میں سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہے علماء کے کہنے کے بعد وہ اعتراض اٹھاتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دعوت اسلامی کے تعلق سے اصل میں یہ کہ مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ کچھ کہنے یا سننے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہر معترض کو جواب دینا ضروری بھی نہیں ہوتا، اور دعوت اسلامی کا جو کام ہے پوری دنیا کے اندر جس حساب سے چل رہا ہے اور جس طریقہ کار سے چل رہا ہے، اور اس کی قبولیت جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب رہا یہ کہ کسی کو ذاتی طور سے اگر کوئی شخص دن میں آنکھیں بند کر لے اور اس کو سورج نظر نہ آئے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ اس دن سورج نہیں ہے یا دنیا کے تمام لوگوں کو سورج نظر نہیں آیا. باقی ہے کہ ہر نعمت والی چیز حسد کی جاتی ہے، یعنی ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے، تو اسی لیے حاسدین نہ ہو کسی بھی شخص کے یا تنظیم کے تو ایسا بہت حد تک ناممکن ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسی تنظیم یا کوئی بھی ایسا شخص اللہ رسول کو انوالو کرنے کے بعد بچتا نہیں ہے کہ اس پہ اعتراض نہ کیا جاتا ہو. یعنی جب اللہ اور اس کے حبیب تک کو نہیں لوگوں نے بخشا اعتراض کرنے میں یا مخالفت کرنے میں، تو پھر ہم تم یا کوئی ذاتی تنظیم یا کوئی ذاتی عالم اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں بچتی اللہ رسول کے بعد کہ اگر ان کی مخالفت ہوتی ہے تو کوئی تعجب والی بات ہے. دوسری یہ کہ ہر شخص کی اپنی اپنی تحقیقات ہوتی ہیں. اگر کسی عالم کو کسی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے، اپنی رائے رکھنے کا جو ہے وہ سب کو حق ہے، اپنی اپنی تحقیق لوگوں کے سامنے لانے کا سب کو حق ہے. وہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کا اپنی تحقیق پیش کرنے کا انداز جاہلانہ ہوتا ہے اور بد کلامی، یا جیسا آپ نے کہا کہ گالی بھی بکتے ہیں بعض لوگ امیر اہل سنت کو، تو اس طریقے کے گالی بکنے والے لوگ عوام میں سے ہو یا خواص میں سے، وہ ان کا ایک طریقہ نظریہ یا ان کی تربیت کا اثر ہوتا ہے. تو آدمی کو جس طریقے کی تربیت دی جائے گی، جو چیز سکھائی جاتی ہے، وہ اسی طریقے کا معاملہ جو ہے پھر عوام کے سامنے یا عوام جو ہے کمنٹس کے اندر پیش کر رہی ہوتی ہے. تو اگر کوئی اعتراض کرتا بھی ہے تو اس سے کوئی بھی فرق دعوت اسلامی پہ نہیں پڑنا، بلکہ بعض لوگ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے خاص دعوت اسلامی کے مدعوں کو پکڑتے ہیں یا امیر اہل سنت کے مدعوں کو پکڑتے ہیں، تاکہ یہ کہ پبلک کے اندر تھوڑی اپنی جو ہے اس ذریعے سے اپنی شہرت یا اپنا نام ہو سکے. کیونکہ کسی بھی بڑی چیز کے خلاف آپ کو ایسی بات کر دیں کہ جس سے ویڈیو زیادہ وائرل یا آڈیو زیادہ وائرل ہونے کے چانسز رہے، تو اس سے اپنا نام ہو جانے کا معاملہ رہتا ہے. باقی اگر جو معترض کے ایک اعتراض ہے، اس میں سب سے بڑا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی نام لے کر جو ہے نا وہ رد نہیں کرتی. مدنی چینل کے اوپر دیوبندی، وہابی، قادیانی، شیعہ، کبھی ان لوگوں کا نام لے کر جو ہے نا وہ رد نہیں ہوتا. یہ ایک جنرل سا سوال ہے جو آج سے نہیں سالوں سے چلتا چلا آیا ہے. تو ایسے لوگ چاہے وہ عوام الناس میں سے ہوں یا پھر خواص میں سے ہوں، ان کو غالباً ہو سکتا ہے اس چیز کی تحقیق نہیں ہوتی اور اس چیز کے بارے میں ان کو جانکاری نہیں ہوتی کہ انٹرنیشنل لیول پر کوئی بھی یعنی سیٹلائٹ کے ذریعے سے کوئی میڈیا پر چینل چلانا اور اپنے گھر بیٹھ کر یوٹیوب پر یا تقریروں کی ریکارڈنگ وغیرہ اس طریقے کے چینل چلانے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. یعنی جب آپ کوئی بھی ایسا چینل شروع کریں گے کسی بھی دیش میں کہ جو سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا میں ایز اے چینل دیکھا جائے گا، نہ کہ سوشل میڈیا کا چینل کے تھرو، بلکہ ایز اے چینل جو ٹی وی پر دیکھا جائے گا، تو اس میڈیا ایجنسی، سرکاری ایجنسی کی کچھ اپنی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جس کا پالن کرنا 100% اس چینل اتھارٹی کو، اس چینل ایڈمنسٹریٹر کو، آنر کو لازمی ہوتا ہے. اگر وہ اس کے خلاف کام کرتے ہیں تو یقیناً ان پہ قانونی کارروائی کی جائے گی اور ان کا چینل کو یا ان کے کام کو روکا جائے گا. مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال آپ ایسا سمجھیں کہ بالفرض اگر دعوت اسلامی چینل کے اوپر یہ بولتی ہے کہ کسی بھی فرد واحد کو پاکستان کے کہ یہ دیوبندی جو مفتی ہے یہ کافر ہے
या ये जो वहाबी मुफ्ती है ये काफिर है। तो ऐन मुमकिन है कि अगर कोई शख्स इस पर उनकी तंजीम यानी बद मज़हब की तंजीम जो है वो इसके ऊपर अगर कोई केस दायर कर दे, चैनल के ऊपर मानहानि का कोई दावा कर दे, तो फिर ये मामला जो है ना कोर्ट में पहुंचेगा। तो कोर्ट उनको, चैनल एडमिन को, फिर वही अपने रूल रेगुलेशन पेश करेगा कि आप चैनल के ऊपर किसी भी फ़र्द के लिए, किसी भी तंजीम शख्स के लिए अलल ऐलान इस तरीके की बात नहीं कर सकते, सिवाय उसके कि जिसको वहाँ के कानून ही ने काफिर करार दे दिया हो, मिसाल के तौर पर कादियानी के। तो इसीलिए चैनल चलाने के जो अपने रूल होते हैं ना, अब क्योंकि हर उलमा इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होता, उनको तो ये लग रहा होता है कि जैसे हमने वीडियो बना दी, यहाँ हम ये काफिर वो काफिर नाम लेकर कह सकते हैं, कोई इतनी कार्रवाई नहीं, कोई इसे पूछेगा गछेगा नहीं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर चैनल चलाने के बाद ये काम इतना आसान नहीं होते। अब क्योंकि आवाम तो कुएँ की मेंढक है, उनको तो इस चीज़ से गरज ही नहीं, क्योंकि इनमें तो जाहिल लोग ज़्यादा होते हैं। तो उनको तो ये समझ आता है कि नहीं, सुबह शाम जो है ना चैनल पर गाली बक दी जाए, गालियाँ दी जाए बद मज़हबों को नाम ले लेकर, तभी दीन और ईमान का काम होता है। तो ऐसा नहीं है, इसके तरीक़ेकार दूसरे भी हैं। तो ये ख़याल लोगों का कि चैनल पर नाम नहीं लिया जाता, इसकी असल वजह ये होती है कि रूल रेगुलेशन। अब क्योंकि आप लोगों ने कभी ऐसा चैनल चलाया नहीं, कभी ज़िंदगी में आपको मौका मिले, यानी जो वीडियो को जायज़ समझते हैं उनको कभी ज़िंदगी में ऐसा मिले मौका कि हिंदुस्तान में आप कोई एक चैनल इस्लामिक शुरू करें, गैर इस्लामिक भी शुरू करें, और जब आप चैनल शुरू करेंगे तो उसके बाद आप चैनल पर बैठकर किसी गलत को गलत नाम लेकर कहोगे तो भी आपके आगे बहुत सारे रूल रेगुलेशन आएंगे। वो जो अथॉरिटी होगी मीडिया की, वो आपको जब चैनल पास होगा, उसका नाम पास होगा, वेरिफिकेशन जितने मरहले से गुजरेगा, उन सब में जब आपको रूल रेगुलेशन दिए जाएंगे तो आपकी समझ में आएगा कि इंटरनेशनल चैनल पर बैठकर किसी का नाम लेकर इस तरीके से मामला नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि इनडायरेक्टली अगर आप कुछ कहना चाहें तो आपको बोलने की आज़ादी होगी, लेकिन उस आज़ादी का हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि आप किसी फ़र्द वाहिद के लिए कह दें, क्योंकि वो जमात वाले एक्शन लेकर कोर्ट वगैरह के अंदर पहुंच सकते हैं। ये उनका भी उस देश के हिसाब से फिर ना लीगल राइट बन जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसके अंदर दूसरे नुकसानात ये हैं कि अगरचे अहले सुन्नत जीत जाए, अपनी बात को वो लोग साबित भी कर दें पाकिस्तान में होते हुए, लेकिन दिक्कत ये है कि उस मामलों में वकील, कोर्ट, कचहरी, कानून के अंदर जो पैसा या रकम खर्च होगी वो आवाम की दी हुई रकम होगी। तो आवाम ने वो रकम दावत इस्लामी को कोर्ट के केस लड़ने के लिए नहीं दी, बल्कि आवाम ने वो रकम दावत इस्लामी को दीन के काम के लिए दी होती है। तो छोटी सोच होती है या फिर दुनियावी तालीम की कमी होती है कि जिन लोगों को ये सब मालूमात नहीं होती, तो उनको ये चीज़ ऐसा लगता है जैसे आम ज़ुबान में खाला जी का घर कहते हैं ना, कि हर चीज़ खाला जी का घर है, कि चैनल पर बैठकर आप कुछ भी इस तरह बोल दो। तो ये यूट्यूब चैनलों पर बैठ के हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल चैनल पर बैठ के नहीं हो सकता। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है, इसको आप और अगर अच्छे से मिसाल के ज़रिए मैं समझाना चाहूँ तो अभी हाल फिलहाल में आपने एक मुद्दा देखा होगा, ट्राई का मुद्दा। यानी जब ये जियो का फ़ोन आया था, जियो की सिम आई थी, तो नई बात है, जब उसने 1 GB डाटा 3 महीने तक फ्री दिया था, आपने चीज़ देखी होगी कि तमाम वोडाफोन, एयरटेल की कंपनियां कोर्ट गई थी। वजह क्या थी? उनका दावा ये था कि जियो वाला सबको फ्री डाटा दे रहा है। अब सोचने वाली बात है, कोर्ट जाने वाले क्या गंवार और जाहिल और बेवकूफ़ थे? उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जियो अपने कंपनी का मालिक है, वो किसी को कुछ भी फ्री में दे, उसकी मर्ज़ी, उसके लिए कोर्ट क्यों गया? वजह यह है कि जब आप कोई टेलीकॉम कंपनी शुरू करेंगे, कोई सिम कार्ड या कोई ऐसी कम्युनिकेशन की कंपनी शुरू करेंगे, तो वहाँ बाकायदा उस अथॉरिटी से जो इंडिया में ट्राई के नाम से है, उससे आपको एक लिस्ट जारी होगी, आपको तमाम रूल समझाए जाएंगे कि आप अपनी सर्विस के कितने चार्ज रखोगे। अब इस पे कोई गंवार उठकर कह दे कि मेरी मर्ज़ी है, मैं सबको फ्री में नेट चलवाऊं, तो इस तरह आपकी मर्ज़ी नहीं चल सकती, क्योंकि ये आपके घर का, यूट्यूब चैनल का ज़ाती मसला नहीं होगा, बल्कि ये एक देश में एक कंपनी, एक इंटरनेशनल लेवल का मसला होगा। तो इसमें आप अपनी नहीं चला सकते, बल्कि उस अथॉरिटी के रूल रेगुलेशन मानने ही पड़ेंगे। अब कोई अगर गंवार है, उसको ये चीज़ मालूम ही नहीं है, वो सोचे मैं अपनी वोडाफोन की या कोई भी नई कंपनी खोलूं, सबको फ्री कॉल दे दूंगा सबको, ये ख़याली पुलाव है, कुएं के मेंढक वाली बात है, जाहिलाना बात है कि वही अंडे से जब तक चूज़ा बाहर निकला नहीं है तो उसको वो अंडे का ही जो अपना जितना परिधि नज़र आ रही है वो ये समझ रहा होता है कि यही पूरी दुनिया है। फिर वो घोंसले में आता है तो वो घोंसले को पूरी दुनिया समझ रहा होता है, लेकिन जब वो आकाश में उड़ता है तो उसको पता चलता है कि ज़मीन आसमान का बहुत फ़र्क होता है इनकी दूरियों में, या घोंसले के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है।
تو یہ کہ جیو والا خود اپنی سم فری دے رہا ہے، ساتھ میں فری انٹرنیٹ دے رہا ہے، لیکن پھر بھی دوسری کمپنی نے دعویٰ کرا، کیونکہ رول یہ تھے کہ آپ کتنا ریٹ رکھ سکتے ہو، منیمم سے منیمم اور میکسیمم سے میکسیمم۔ تو اس ایک مثال سے جو کہ موجودہ دور میں تھی، اس میں بھی جیو والا یہ کہہ سکتا تھا کہ کوڈ جانے کی کیا ضرورت ہے، میری کمپنی میں سب کو فری دوں، لیکن اس میں بھی کوڈ میں کیس ہوا کہ یہ اتنا ڈاٹا کیوں فری دیتے ہیں، اتنی لمٹ کیوں۔ انہوں نے اپنے دلائل رکھے، ہار جیت کا معاملہ ہوا، آگے جیو چلا، لیکن ابھی مدعا جیو کا نہیں ہے، مدعا اس ایک مثال کو، کیونکہ ایک ابھی حال فلالیہ مثال ہے، تو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ چینل پر بیٹھ کر کیوں کسی کے نام کے ساتھ رد نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی اعتراض کا جواب یا پھر کسی کا بھی رد کرنے کے لیے اس کا نام لینا، یعنی کسی خاص پرٹیکولر بندے کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بد مذہبوں سے ہم بیزار ہیں، یا پھر یہ کہ بد دین بد مذہبوں سے دور رہیں، یا پھر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ ہم الحمدللہ سنی بریلوی ہیں، تو اس کے ایسے کال سے بھی باقی تمام فرقوں کا خود بخود رد ہوگا۔ یعنی یہ کہنا کہ میں بریلوی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں وہابی نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ، کیونکہ مفہوم مخالف اہل سنت کے اندر دلیل ہوتا ہے۔ جب یہ شخص یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں بریلوی ہوں، تو یہ چیز دلیل ہوگی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہابی نہیں ہوں، اگرچہ وہ الفاظ سے نہ کہے۔ ایک اصول ہے، اس کو عالم لوگ سمجھتے ہوں گے، عوام اگرچہ نہ سمجھے، کہ اگر کوئی شخص خود کو بریلوی بتاتا ہے اور اپنے الفاظ میں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں دیوبندی نہیں ہوں، لیکن اس کا خود کو بریلوی کہنا اسی بات کی دلیل مانی جائے گی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دیوبندی نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنے الفاظوں میں نہیں کہہ رہا، لیکن پھر بھی یہی کہا جائے گا کہ وہ دیوبندی نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ تو اگر کوئی تنظیم خود کو اہل سنت یا بریلوی یا اعلیٰ حضرت کا نام لیتی ہے اور سارے معمولات اہل سنت، مستحبات، نیاز، فاتح، اصال ثواب کو لے کر اتنی زور و شوروں سے اپنی بات رکھتی ہے، کیونکہ چینل پہ اس چیز کی پرمیشن ہوتی ہے کہ آپ فلاں شخص کا نام لے کر اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ بات اپنی رکھ سکتے ہو، تو اس اعتبار سے دعوت اسلامیہ مدنی چینل ہمیشہ لوگوں کے اندر اپنی بریلویت کی، سنیت کی باتوں کو رکھتا ہے، اور ان باتوں کو رکھ دینا ہی باقی چیزوں لوگوں کی کاٹ ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ بریلی شریف میں پیدا ہوئے تھے، تو اس نسبت سے ہم بریلوی کہلائے۔ بریلوی کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، معاذ اللہ، یعنی بریلوی مانے وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو عقائد بتائے، جو قرآن و حدیث کے عقائد ہیں، جو صحابہ کرام کے عقائد چلے آ رہے تھے، تو وہ عقائد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اندر اتارے، تو یوں اس نسبت سے ہم بریلوی کہلائے۔ عاشق رسول، عاشق رسول، کیا بریلوی من عاشق رسول، عاشق صحابہ و اہل بیت، عاشق اولیاء کرام، عاشق غوث و خواجہ جو ہوتا ہے وہ ہے بریلوی۔ الحمدللہ فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا، اور جو میں نے کہا یہ بریلویوں میں ملے گا، اور اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر وہ بریلوی نہیں ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا بات ہے، صلی اللہ کو اسی پر استقامت نصیب فرمائے، اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ ہم 112%، 1200%، 12,000%، 12 کروڑ% لا تعداد % میں مطمئن ہوں، الحمدللہ میرے اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں، ماشاء میں اللہ۔ مطمئن ہوں کہ ہمیں تو جو رد کرنے کے دوسرے موقع اور طریقے ہوتے ہیں۔ باقی ہاں، دعوت اسلامی کا مبلغ اگر ذاتی طور سے آ کر کسی جماعت کے اوپر ویڈیو بنائے یا وہ کرے، وہ ایک اس کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن چینل کے لیول تک نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو اپنی سوچ کو دائرہ تھوڑا بڑھانا پڑے گا، ان کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ یہاں بیٹھ کے یہ کہنا کہ فلاں سرکار کے خلاف آپ نہیں وہاں بول سکتے، تو بول تو یوٹیوب پہ آپ بھی یہاں کی سرکار کے خلاف نہیں بول سکتے، اور جو آپ بولتے ہو وہ الفاظ آپ کے بھی دبے کچلے اور اشاروں میں ہوتے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو تو معلوم ہے، آپ پرائم منسٹر کو کیوں یہاں پہ کھلے عام گالی نہیں بک سکتے، کیوں اتنا رد نہیں کر سکتے؟ آپ بڑی عاجزی اور دکھانے کے طور پہ ریسپیکٹ کرتے ہو۔ تو یہ مسئلہ جب خود پہ آتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف بولنا کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف اگر دعوت اسلامی وہاں کی گورنمنٹ کے خلاف بولتی ہے یا کوئی سی بات ہوتی بھی ہے، تو گورنمنٹ سے اگر کوئی ایکشن ایسا لیا جاتا ہے کہ جس میں چینل پر کوئی پابندی لگائی جائے گی، تو اس کے اندر جو ہے سنیت کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کسی لوگوں کو نقصان سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو لگتا ہوگا کہ مدنی چینل سے کوئی فائدہ نہیں، وہ اس کی ذاتی رائے ہے، میں بھی اس کی رائے کا احترام کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے سنیت کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ اس سے فائدہ ہی کیا ہے،
तो ये तो आपको लग रहा है, जब आप कुएं से बाहर निकलोगे तो आपको लगेगा कि मदनी चैनल से कहाँ कहाँ फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ रहने वाले हिंदुस्तान के अंदर उनको पता नहीं कि बाहर दावत इस्लामी का कितना काम हो रहा है, या दावत इस्लामी के कौन कौन से शोबाजात किस किस तरीके से काम हो रहे हैं। तो जब उनकी तहकीक नहीं होती इस बारे में, तो फिर वो इस तरीके की नारेबाजी, शोर शराबा, हंगामी हालात पैदा करना, ये फिर लाजमी है कि आदमी अपनी अकल के मुताबिक ही कलाम करता है। तो जैसी लोगों की अकलें होती हैं वो उसके हिसाब से जो है ना बात कर रहे होते हैं। तो अगर चैनल बंद होता है तो इससे नुकसान बड़ा है। तो लिहाजा इस चीज़ को तो शरीयत भी कहती है कि अगर आपके सामने दो मौके ऐसे आए कि जिसमें नुकसान, यानी अगर नुकसान से बचने के लिए फ़ायदा छोड़ा जाए तो उसूल ये है कि फ़ायदे को छोड़ दिया जाए, नुकसान से बचा जाए। और ये कायदा मेरा ख़ुद का गढ़ा हुआ नहीं है। मोतरीज़ दावत इस्लामी जो एतराज़ करने वाले हैं, आप उनसे पूछें कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है कि अगर फ़ायदा मिलता हो और नुकसान भी होता हो, अगर फ़ायदा छोड़ने से नुकसान से बचा जाएगा तो शरीयत कहती है कि नुकसान से बचा जाए अगरचे फ़ायदा छोड़ दिया जाए, क्योंकि नुकसान से बचना बेहतर है फ़ायदा हासिल करने के। तो नुकसान क्या होगा कि अगर चैनल पे इस तरीके का कहने से कुछ कार्रवाई होगी तो ज़ाहिर है कि अहले सुन्नत का और दीन का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये मेरी राय है कि दिन का नुकसान होगा, मेरे जैसे लाखों लोगों की राय है, आपकी नहीं हो सकती है, आप इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी बात रखने का बिल्कुल जो है वो हक़ है, क्योंकि मैं भी ज़ाहिर है कि अगर आप ये कहते हैं कोई नुकसान नहीं, तो आप मेरे बाप के नौकर थोड़ी ना है कि मैं अपने अल्फाज आपके मुंह में डालूं कि बोलो कि नुकसान है। तो इसी तरह मैं भी आपके बाप का नौकर नहीं हूँ, तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा दावत इस्लामी के चैनल बंद होने से नुकसान है। और चैनल बंद होने का फिर वही है कि अगर आप किसी के ख़िलाफ़ ऐसे बोलोगे, हो सकता है वो जमात तंजीम मानहानि का दावा करे, कोई केस करे, या फिर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी वहाँ की कोई एक्शन ले, तो इससे दूसरे नुकसान चैनल के सामने आएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी वजह होती है कि जो लोगों के सामने नहीं होती। कोई चैनल वहाँ की गवर्नमेंट से अप्रूव कराने के लिए, पास कराने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और उसमें किस कदर रकम जो है ना खर्च होती है चैनल सैटेलाइट से चलाने के लिए, इसका अंदाज़ा नहीं है। अब कोई शख्स किसी चीज़ को, आप अपने ऊपर मिसाल ले लें, जो दावत इस्लामी को मुखालिफ जितने दावत इस्लामी के एतराज़ इसी बात पे करते हैं ना, आप अपनी ज़ाती मिसाल मैं आपको देता हूँ। अगर आप एक बिल्डिंग खड़ी करना चाहें और आपका 4 मंजिल का घर 2 मंजिल का बन चुका हो और इतने में ही पुलिस वाला आके आपको बोले कि इसका नक्शा कहाँ है, तो आप यकीनन अगर नक्शा पेश नहीं कर पाएंगे तो आप उस बिल्डिंग को क्या वहीं छोड़ देंगे बनना? आप उस सूरत में क्या करेंगे? आप उस पुलिस वाले को रिश्वत देंगे। क्या उस वक्त आपको रिश्वत का हराम होना समझ नहीं आएगा? तो उस वक्त आप अपने लिए दलीलें पेश करेंगे कि वो इतना बड़ा नुकसान हो जाता, 2 माले खड़े हो गए थे, लाखों रुपए लग चुके थे, अब उसको वहाँ पे छोड़ देते तो नुकसान होता। लिहाजा फ़ायदा यानी नुकसान से बचने के लिए हमने फ़ायदे को छोड़ा, इसलिए थोड़ा सा रिश्वत उनको दे दी, मामला ताकि सेटल हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जब आदमी का काम या पैसा इतना अटका हुआ होता है या काम इस लेवल पे पहुंच जाता है, तो हर आदमी हर उस नुकसान से बचने के लिए तरीके निकालता है कि मेरे इस 2 माले को कोई नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि बिल्डोज़र आके इसको तोड़ दे, लिहाजा चंद रुपए देकर मामले को हल कराया जाए ताकि ये काम आगे बढ़े, वजह कि मेरा पैसा लगा हुआ है। सेम ऐसे ही मदनी चैनल चलाने के लिए, उसको अप्रूव कराने के लिए करोड़ों रुपया लगा हुआ है, करोड़ों, यानी लाखों नहीं है, करोड़ों। और कितने महीने के लाख यानी कितने सालाना कितने करोड़ रुपए मदनी चैनल को चलाने के लिए जाते हैं, इसका अंदाज़ा आप लोगों को यानी मोतरीज़ को नहीं होता। तो इसलिए उनको ये खाला जी का घर लगता है कि फ़लाँ का नाम नहीं लिया देवबंदी का, फ़लाँ का वहाबी का नाम नहीं लिया, शिया का नाम नहीं लिया। जिस चैनल को चलाने में करोड़ों रुपया जा रहा हो, अगर नाम लेने से वो पैसा फंस जाए या चैनल रुक जाए, तो आप बताओ, आप अपने 2 माले बचाने के लिए, लाखों रुपए ज़ाती बचाने के लिए पुलिस को रिश्वत दे के किसी तरह मामला निकालोगे कि किसी तरह ये काम जल्दी जल्दी हो, पैसा नहीं फंसना चाहिए। तो जो आवाम दावत इस्लामी को मदनी चैनल चलाने के लिए करोड़ों रुपये का डोनेशन देती है और उन करोड़ों रुपये चैनल में लगा कर किया जा रहा है, तो क्या वहाँ ऐसा काम किया जाएगा कि वो करोड़ों रुपए रुक जाएं? यानी करोड़ों रुपए लगा के चैनल चलाया जा रहा है, फिर कोई ऐसी बात की जाए कि गवर्नमेंट उसको बैन कर दे, तो क्या आवाम का पैसा फंसेगा या नहीं? तो हमेशा हसद से काम नहीं लेना चाहिए, कभी कभी दुनिया की नॉलेज भी रख लेनी चाहिए कि अथॉरिटी, मीडिया एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी की क्या पॉलिसी होती है और आपको वहाँ के क्या नॉर्म्स मानने पड़ते हैं, क्या पॉलिसी को अप्रूव करना पड़ता है कोई भी चीज़ पास कराने के लिए। तो जहाँ पर इतना बड़ा नुकसान हो, वहाँ पर छोटा मोटा अगर फ़ायदा आदमी इग्नोर भी करे तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। दूसरी बात यह है कि बद मज़हब के रद्द के ताल्लुक से, जैसा मैंने कहा कि हर रद्द करना नाम के साथ ज़रूरी या लाजमी नहीं होता। ख़ुद को बरेलवी कहना, जिस तरीके से सारे फ़िरक़ों का ख़ुद ही इनकार है कि भाई जो बंदा ख़ुद को बरेलवी कह रहा है तो वो ज़ाहिर नहीं है। तो क्योंकि आदमी को अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी होती है, हर
देश के अंदर, तो उसका तो दावत इस्लामी पूरा फ़ायदा उठाती है ना। यानी ख़ुद को बरेलवी कहना, आला हज़रत का नाम लेना, क्या ये प्रूफ नहीं होता इस चीज़ का कि बदमज़हब का रद्द है? दूसरी बात ये कि एक आलिम साहब ने अपने जुमलों के अंदर शियाओं का, वहाबियों का, कादियानियों का नाम के साथ रद्द नहीं लिया, उन्होंने लफ्ज़ कादियानी का इजाफ़ा उसमें कर दिया। ख़ुद मैंने कितने प्रोग्राम के अंदर, यानी किसी की सुनी हुई बात नहीं, अपने कानों से सुनी हुई, कादियानी का मदनी चैनल पर नाम के साथ रद्द भी किया गया और नाम के साथ उनको काफिर करार भी दिया गया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी 26 मई 1908 में ये लाहौर में उसको डायरिया हुआ और गंदगी के आलम में, यूँ समझिए कि इबरत का निशान उसकी लाश बन गई। ये है झूठे नबी का अंजाम। लोगों ने अर्ज़ की कि हुज़ूर हर्ज किया था, वो आयतें तो सुना रहे थे ना, हदीसें ही तो सुना रहे थे। आज लोग यही कहते हैं ना, यार हम सिर्फ कुरान सुनते हैं, मैं बच्चों को इसलिए भेजता हूँ फलां जगह पर कि बच्चा कुरान सीख कर आ जाए। अरे उसके पास भेजते हो जिसका अकीदा ही ठीक नहीं, तो तुम्हारे बच्चे को कल क्या बना देगा? नबी वो जिसको अल्लाह ने नबूवत दी, कादियानियों का नबी नहीं है। कादियानियों के नबी पर ईमान लाना, गुलाम अहमद कादियानी जिसका नाम था, उसको कोई अगर नबी मानता तो काफिर हो जाएगा। मैं अपने कुफरिया मजहब से उसका नाम भी ले लीजिए, अहमदियत। मैं अपने कादियानी लाहौरी अहमदियत कादियानियत, अपने अहमदियत कादियानियत से तौबा करता हूँ। बुरे यार की सोहबत ईमान बर्बाद कर देती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसे ये देखना चाहिए कि किससे दोस्ती करता है। अब सोचिए, दोस्त के दीन पर होता है। ए बदमज़हबों के साथ उठने बैठने वालों, ए बदमज़हबों से दोस्तियां करने वालों, ए उनके सिलसिलों को, उनके प्रोग्राम्स देखने वालों, उनके सोशल मीडिया पर क्लिप देखने वालों, दूसरों को फॉरवर्ड करने वालों। लोग कहते हैं मैं सुनता सबकी हूं, अब मेरे अकीदे पे कोई असर नहीं पड़ता। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमने उनकी सुननी भी नहीं है। जिसने मेरे आका की नहीं सुनी, जिसने सहाबा की नहीं सुनी, जिसने रब से सच्चा भरोसा नहीं रखा, हमने उसकी बात क्यों सुननी है? और यही ये उसका नाम है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। तो अब ये चूंकि ये मिर्जा, इसका मतलब वो सरनेम मिर्जा जात या जो कह दे, तो मिर्जा से ये मिर्जा ही कहलाते हैं ये लोग जो इसको नबी मानते हैं। और गुलाम अहमद इसका नाम था, तो इसकी निस्बत से ये अहमदी कहलाते हैं। और कादियान किसी शहर का नाम है, तो उसकी निस्बत से ये कादियानी है। तो यूं ये लोग यानी कि 3 नामों से पहचाने जाते हैं, मिर्जाई, अहमदी, कादियानी। जमाने में भी था और आज भी उसका फितना बाकी है। वो बदबख्त कौन था? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ये इसके चेलों ने ये मज़कूरा बकवास सुनकर उसका लकब ही बाब कर दिया, यानी डोर उसका लकब था। ये बाबी डोर की वजह से, बाब की वजह से था। बाबी फिरके के चंद अकायद सुनिए। माज़अल्लाह, नंबर 1, वो कहता खुदा कहीं गायब नहीं है, बल्कि वो हमारे अपने अंदर मौजूद है। बल्कि कुछ लोगों के ज़हनों में ये भी होता है, मैं इसलिए बैठता हूँ उनको नमाजी बना लूंगा, मैं उनको करीब ले आऊंगा, मैं उनके बदमज़हब है मेरे दोस्त। कुछ ये भी कहते हैं, माज़अल्लाह, बदमज़हब तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया? जो अल्लाह और उसके रसूल के बारे में सही अकीदा नहीं रखता वो तुम्हारा दोस्त? खुद सोचिए आप, खुद ये लफ्ज कहना कैसा कि जो रब का दुश्मन वो मेरा दोस्त, जो नबी पाक का दुश्मन वो मेरा दोस्त, जो वलियों का दुश्मन वो मेरा दोस्त। ये जुमला कैसा है? अरे कोई मेरे बाप के बारे में बुरी बात करे, मैं सलाम करना पसंद नहीं करता। और जो औलिया इकराम, साहबा इकराम, नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद रब अज़्ज़ व जल के बारे में बकवास करता फिरे और मैं कहूं मेरा दोस्त है, अस्तगफिरुल्लाह। सोचो तुम्हारे ईमान का क्या होगा। लोग कहते हैं हम इसलिए बैठते हैं कि उनको ठीक कर देंगे। और पहले खुद तो पक्के हो जाओ, खुद तो ठीक हो जाओ, खुद तो इल्म दीन हासिल कर लो। किस जाके तकरीरें सुन लें, किसी के आप क्लिप सुन लें और वो हो दीनी एतबार से नुकसानदेह है, बद अकीदा है, बद मजहब, पता है, उसकी शक्ल देखकर आपको पता लग जाएगा, तो आप उसके बावजूद आप सुन लेते हैं। कई ऐसे भोले भाले हैं, मेरे को तो हैरत आती है उन पर। ये गुस्ताखान रसूल एक बार फिर मुतहर्रिक हुए और आशिकान रसूल एक बार फिर इनके जज्बात जो है वो मजरू हुए। अल्लाह करीम इन गुस्ताखान रसूल को खारत करे, ये अपने कैफर किरदार को पहुंचे, आमीन आमीन, तबाह और बर्बाद हो जाए, आमीन। ये हमको इस तरह मतलब है कि हमारे दिलों को जलाते हैं। अल्लाह करीम इनको हिदायत दे,
हिदायत इनके नसीब में नहीं है तो ये गरक हो जाए, जल्दी जल्दी ये दफ़ा हो जाएं और ये खुशखबरियाँ हमें मिल जाएं कि ये दुनिया से मतलब तबाह होकर निकले। ऐसी इबरतनाक इनको सजाएं मिलें कि दुनिया देखती रह जाए और कोई सोच भी ना सके कि हम भी सरकार की तौहीन करें। तो क्यों, उसकी वजह क्या है? अब आप पूछेंगे कादियानी क्यों, कि उनके खिलाफ तो उस देश के अंदर एक पॉलिसी बनी हुई है, वो पॉलिसी बनी हुई है। दूसरी बात, वहाँ का कानून है कि पूरे देश ने उसको, उस अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट इदारों ने, तमाम वहाँ के पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उसको काफिर करार दे रखा है। तो इसलिए अब वहाँ उसको काफिर कह सकते हो। तो वहाँ पे वो लोग दावा भी नहीं कर सकते कोर्ट में जाके कि हमें काफिर कह दिया, क्योंकि वहाँ तो खुद गवर्नमेंट ने इस पर कानून बना रखा है कि वो काफिर है। तो जब गवर्नमेंट ने कानून बना रखा है तो वहाँ वो लोग देखो नाम के साथ रद्द करते हैं। ये अलग बात है कि उन आलिम साहब ने सुना नहीं होगा, लेकिन हर आलिम हर बात सुन ले ज़रूरी नहीं है। मदनी चैनल के ऊपर कादियानियों का नाम के साथ रद्द होता है। तो अब मैं पूछना चाहूँगा, क्या वो अपनी इस बात से रुजू करेंगे कि कादियानी को जो उन्होंने इजाफा करा, या फिर इस पर दलीलें देंगे कि मैंने कुल बोल के जुज़ मुराद लिया, ये बोल के मुझे फ़िक़्ह के कायदे जो है वो समझाएंगे, अब उसूल मुझे वो समझाएंगे कि मेरा मतलब ये था, बदमज़हब लिया तो फ़्लो में वो नाम आ गया, फ़्लो में नाम आ गया। तो आप ये कहते हैं कि देवबंदी वहाबी का नाम नहीं सुना गया, लेकिन कादियानी का नाम आपने नहीं सुना, कादियानी का नाम लिया गया। इसको मैं मुफ्ती कासिम अत्तारी गालिबन एक प्रोग्राम कर रहे थे, उन्होंने आयत की तफसीर के अंदर, मैंने ख़ुद वो प्रोग्राम देखा था, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा कादियानियों का नाम तो यकीनन लिया जाता है, सोई लोगों ने सुना होगा। बाकी जो ये अल्लामा साहब कहते हैं कि नाम नहीं लिया जाता कादियानियों तक का, वो यानी ख़ता पर हैं। दूसरी बात ये कि उनकी तहकीक नहीं होगी या फिर गलती हो गई होगी। ज़ाहिर है कि हर आलिम कोई नबी फ़रिश्ता तो नहीं है, गलती के इम्कान है। सोई गलती ज़िंदगी में आदमी करके जो है ना वो गुज़र चुके होते हैं, लेकिन दावत इस्लामी पर बात आती है तो ख़ुद को इस तरह से दूध के धुले हुए समझ रहे होते हैं कि जैसे हमने अपने ज़माने में तो कुछ किया ही नहीं होता, हम तो इस तरीके से हम पे आयतें नाजिल हुई या सूरत नाजिल हुई कि हम में कोई ख़ता का इम्कान ही नहीं, इस तरीके से वो पेश कर रहे होते। तो कादियानी का नाम बाकायदा लिया जाता है मदनी चैनल पे। तो इससे भी अक्ल वाले को ये बात समझ आ जाएगी कि कादियानी का अगर नाम लिया जा रहा है तो वहाबी का क्यों नहीं लिया जा रहा। उसके पीछे वजह वही पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की कि अगर आपने ऐसा काम आप नहीं कर सकते, पॉलिसी की तरफ से आपको इजाज़त नहीं होगी। कादियानियों की तरफ से इजाज़त इसलिए होगी क्योंकि वो तो गवर्नमेंट भी उनको काफिर मानती है, तो इसलिए कादियानियों का नाम बाकायदा लिया जाता है। तो उनका नाम लेना इस बात की दलील है कि बदमज़हबों को रद्द करते हैं, काफिरों का रद्द करते हैं, और गुस्ताख़ रसूल या काफिर या बद्दीन बदमज़हब जैसे अल्फाजों से आप कह सकते हो, इसकी परमिशन होती है और वो दावत इस्लामी कहती है। बल्कि पासपोर्ट पे लिखने के ताल्लुक से कई बार मदनी मुज़ाकरे में सवाल आते हैं कि बाज़ लोग कादियानी लिख देते हैं, तो अमीर अहले सुन्नत ने और दीगर वहाँ के उलमा ने बताया कि काफिर लिखने से भी आदमी काफिर होता है। तो क्या वो कादियानियों का नाम नहीं है? हाँ, अगर आपने नहीं सुना तो आप ये कह दोगे मैंने नहीं सुना, हो सकता है लिया जाता हो। इस चीज़ का दावा नहीं कर सकते कि कादियानियों तक का नाम नहीं लिया जाता। ये जज्बात में बोली गई अवाम के सामने बातें होती हैं, सिर्फ हंगामी हालात पैदा करने के लिए या अपने ख़ास मुहिब्बीन से अपनी वाह चाहने के लिए कि किसी पर भी कोई ऐसा एतराज़ के जिसके सर ना पैर वाली बात वो। तो ये असल वजह होती है कि दावत इस्लामी जो है खुलेआम इस तरीके से नहीं बोलती, लेकिन दूसरी बात यह है कि वो बद्दीन बदमज़हब जैसे अल्फाजों से उनका रद्द करती है। एक इसकी मिसाल आप और समझ सकते हैं कि अगर कोई शख्स किसी शख्स से ये कहता है कि तुम्हारा मज़हब क्या है, यानी मैं एक उसूल आपको बता रहा हूँ जिससे आपके समझ में आ जाएगा कि अगर कोई शख्स किसी से कहता है कि आपका मज़हब क्या है, और वो शख्स जिस पे ये पूछा गया कि आपका मज़हब क्या है, वो बंदा प्रैक्टिकली उसको दिखाए कि मैं भी आपको दिखाता हूँ मेरा मज़हब क्या है, फिर वो बाल्टी लाए, वज़ू करे, नमाज़ पढ़े और सामने वाले के यानी एतराज़ करने वाले सामने बैठ जाए, यानी उससे ये कहना चाहे कि मेरा मज़हब ये है, तो क्या उसका मज़हब इस्लाम साबित नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। अगरचे उसने नाम मुंह से लिया ही नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उसका करके दिखा देना ही यही चीज़ की दलील है कि वो मुसलमान है। यानी किसी ने पूछा, जैद ने पूछा बकर से कि तेरा दीन क्या है, उसने कहा मेरा दीन मैं अभी बताता हूँ। उसने लाया लोटा, वज़ू करा, नमाज़ पढ़ी, सलाम फेरा और कहा कि ये मेरा दीन है, तो उसका मुसलमान ना कहना भी ख़ुद को मुसलमान साबित कर रहा है। तो कभी कभी शरीयत में दलील कौल से भी होती है और दलील फ़ेल से भी होती है। तो किसी का कौल उस बात में ना होना इस बात की दलील नहीं कि वो बंदा उस चीज़ के बारे में कोई राय नहीं रखता, उसका फ़ेल साबित कर रहा है अपनी राय को, यानी उसका फ़ेल ये दिखा रहा है कि जो चीज़ मैंने कौल से नहीं की मैं फ़ेल से कर रहा हूँ। और ये तो चैनलों पर होती है
کہ बंदे अगरचे नाम नहीं लेते। इंडिया के अंदर भी आप न्यूज़ चैनल हो या कोई से भी चैनल, बहुत सारे मामलों में आप डायरेक्ट किसी भी बात को लेकर नाम नहीं ले सकते और कितना हंगामा हो जाता है आपको मालूम है। ट्वीट करने पे अगर आपने कोई ऐसी बात कर दी या किसी से मुशाबहत देने में किसी और जाति या धर्म की बात कर दी तो उस पर किस तरीके का मामला होता है। यानी ये मामला पेश आ चुका है, लोग उसको देखते हैं फिर भी ऐसे अनजान बन के बोलते हैं कि वहाँ पर ये चैनल के ऊपर इस तरीके की बात नहीं होती। जब यहाँ पर नहीं हो सकती तो हर उस देश की भी पॉलिसी होगी कि वहाँ नहीं हो सकती। तो आदमी का अपने कॉल से किसी चीज़ का रद्द करना और अपने फेल से किसी चीज़ का रद्द करना, दोनों बातों से जो है ना उसकी बात साबित हो सकती है। तो दावत इस्लामी अगरचे कॉल से रद्द नहीं करती लेकिन फेल से रद्द करती है। और उसकी मिसाल मैंने वही दी कि कोई नमाज़ पढ़ के दिखा दे तो उसका दीन साबित हो जाएगा कि वो बंदा मुसलमान है। यानी कोई भी किसी भी देश के अंदर किसी से पूछे आपका मज़हब क्या है, वो बंदा नमाज़ पढ़ ले तो यकीनन बंदा समझ जाएगा कि ये इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाला है, अगरचे वो कुछ ना कहे। तो दावत इस्लामी का जो फ़ेल है, और बल्कि वो तो कॉल से भी साबित है लेकिन हासिदीन को नहीं दिखेगा, वो एक अलग बात है। कॉल से भी साबित है कि बद मज़हब का रद्द, गुस्ताखे रसूल का रद्द या बद्दीनों का रद्द या फिर उनसे बेजारी का इजहार, सुन्नतों पे अमल, न्यास फातिहा, इसाले सवाब, गौसे पाक, वलियों से मदद। यानी कितने कॉल से तो बद मज़हबों का रद्द है ना कि जो गैर अल्लाह से मदद को शिरक करार देते हैं। दावत इस्लाम इसको खुलेआम कहती है गैर अल्लाह से मदद जायज़ है। तो इसको अलल ऐलान कहना कि ये बद्दीन और वहाबियत का रद्द नहीं है, ये तो कॉल से रद्द है। और बाकी फ़ेल से रद्द होता है कि इसाले सवाब वहाँ पर दिखाया जाता है और मिलाद वहाँ पर दिखाई जाती है, ये उनका फ़ेल से रद्द है। इसी तरीके से वहाँ पर जो है ना उर्स दिखाए जाते हैं, ये उनका फ़ेल से रद्द है। तो दावत इस्लामी का कॉल से और फ़ेल से दोनों से रद्द है। अब रहा ये कि आपके तो नाम नहीं लेते, तो भाई नहीं लेते, आपके पेट में क्यों दर्द है? आप नाम ले सकते हो तो आप ले लो, एक चैनल खोल के आप नाम लो किसी तंजीम का चैनल के ऊपर चलाकर, आपको खुद मालूम चलेगा कि करोड़ों रुपए चैनल लगाने के बाद, चैनल खोलने के बाद नाम लेकर क्या अंजाम है। तो आप वहाँ आपका भी मामला बिल्कुल वैसा ही होगा। यानी जब आपके सामने रूल रेगुलेशन आएंगे कि मेरी सिम में मैं फ्री में नेट चलवाऊँ, नहीं चलवा सकते आप। तो ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए। जब इस चीज़ का इल्म होगा तो आपको, बाकी बहुत सारे एतराज़ है लेकिन क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, वरना मैं बताता कि 200 देश कौन कौन से हैं या 200 देश के करीब जो लोग हैं ना मामला के दावत इस्लामी कहती है तो इस पर एतराज़ किया जाता है। लेकिन ये कि हर एतराज़ का जवाब दिया जाए ज़रूरी नहीं है। दावत इस्लामी का काम चल रहा है तो ऐसे उलमा के जो आपको लगता है कि दावत इस्लामी है मेरे सुन्नत को, जैसा कि आपने सवाल में लिखा है सुहेल रज़वी साहब के दावत इस्लाम गाली देते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे आलिम से, दावत इस्लामी तो दूर, अगर कोई आपको लगता है कि अलल ऐलान कोई आलिम किसी आम मुसलमान को भी गाली देता है तो फासिक वो भी है हदीस पाक के तहत कि बे इजाज़त शरा किसी मुसलमान को भी गाली देना, आला हज़रत फरमाते हैं बाज़ गाली तो हलाल भी नहीं हो सकती, यानी इतनी शदीद होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि दावत इस्लामी को, अमीर अहले सुन्नत को या किसी भी सुन्नी आलिम को, कोई भी किसी भी जमात का, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, अगर वो गाली देता है तो आप उसके अखलाक़ियात से समझ सकते हो ना कि बंदा कितना बड़ा आलिम है कि जो गालियों से बात करता हो या बदतमीज़ी बदज़ुबानी से बात करता हो। क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि रात भर की इबादतों से भी बंदा अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो मकाम हासिल नहीं कर सकता कि जो अखलाक के ज़रिए कर लेता है। यानी अखलाक एक ऐसी चीज़ है कि आदमी का किसी अखलाक के साथ बोलना पूरी रात की इबादत से ज़्यादा उसको बेहतर बताया गया, उससे तशबीह दी गई। तो जिस आलिम के अंदर अखलाकियात ही नहीं है और अगर वो गाली गलोच करता है बकौल आपके, तो फिर परहेज़ करना चाहिए ऐसे लोगों से, चाहे वो आम मुसलमान को गाली बके या किसी दूसरे शख्स को गाली बके। तो ऐसे लोगों से जो है आप परहेज़ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। बाकी दावत इस्लामी पे जो बड़ा एतराज़ है उसको मैंने अपनी अकल के मुताबिक जवाब दे दिया। अब ये मेरी नॉलेज या एजुकेशन ऑथेंटिक है या नहीं इसका मैं ज़ाती ज़िम्मेदार हो सकता है ये मामला ना हो, लेकिन समझ में इतना ही आता है कि इसी तरीके का जो है वो जब बद मज़हब के ताल्लुक़ से फ़ेली रद्द में आप एक चीज़ को और नोट करें, वो ये कि दावत इस्लामी की किताबों के अंदर ना वद मज़हब या वहाबियत, देवबंदियत का बाकायदा नाम के साथ ही रद्द है। यानी जिस तरीके से हमारे उलमा ने किताबों में रद्द लिखा है, दावत इस्लामी ने जब उसको प्रिंट किया तो हू बहू वैसे ही प्रिंट किया उन्हीं अल्फाजों के साथ, ना तो कोई अल्फाज निकाला ना तो कोई ऐड किया। तो अगर दावत इस्लामी वहाबियत को प्रमोट करती या रद्द करने से कतराती तो किताबों के अंदर भी वो नाम नहीं होने चाहिए थे। आप एक मिसाल बहार शरीयत की ले लें, दावत इस्लामी की प्रिंटेड बहार शरीयत है, किसी भी और इदारे ने इस किताब को इस अंदाज़ में नहीं छापा, बल्कि जिसने भी बहार शरीयत में जहाँ जहाँ वहाबियों की अकायद के अंदर इबारतें लिखी थी वो टाइप की गई हैं कि वहाबियत ने अपनी किताब में ये लिखा, वहाबियों ने अपनी किताब में ये लिखा, देवबंदियों ने अपनी किताब में ये लिखा। लेकिन
दावत इस्लामी ने उस किताब का स्कैन पेज लगा के दिखाया है कि देखो वहाबियों ने ये लिखा है। दावत इस्लामी ने टाइप नहीं किया, तो ये कितना बड़ा रद्द है। आप इस मिसाल की कोई और बहार शरीयत आप पेश कर सकते हैं, यानी मुखालिफिन कि जिसके अंदर टाइप ना की गई हो अपने हाथ से, ओरिजिनल किताब को स्कैन दिखाया हो, कोई बहार शरीयत आप ऐसी ला सकते हैं? अगर नहीं ला सकते तो दावत इस्लामी की आप किताब भी देख लो, इसे कहते हैं फेली रद्द, कि दावत इस्लामी ने अपने काम से रद्द करके दिखाया कि वहाबियों ने जो गुस्ताखी करी है वो सिर्फ टाइप नहीं की, बल्कि ओरिजिनल वहाबियों की किताब को स्कैन कर कर उस पेज को ऐड किया गया है बहार शरीयत के अंदर। आप चाहें तो बहार शरीयत दावत इस्लामी की देख लें और उसके अकायद का बयान देख लें, वहाँ पर जितनी इबारत है देवबंदी वहाबियों की गुस्ताखियों की है, दावत इस्लामी ने उसको प्रिंट करके दिखाया ओरिजिनल। तो क्या ये रद्द नहीं है वहाबियों का? क्या ये रद्द नहीं है देवबंदियों का? आप किताब के अंदर देखें, और कौन सी किताब ऐसी मिलती है बहार शरीयत की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसके अंदर ओरिजिनल पेज को स्कैन करके दिखाया गया हो। तो क्या ओरिजिनल पेज को वहाबी की इबारत को दिखाना वहाबियों का रद्द नहीं होता? क्या इससे पता नहीं चलता कि ये सुन्नी तंजीम है, बरेलवी तंजीम है? अगर बिलफर्ज किसी को लगता है कि दावत इस्लामी सुन्नी बरेलवी तंजीम नहीं है, तो फिर मेरे ख़्याल से ज़मीन पर तो फिर कोई बरेलवी तंजीम नहीं है अगर दावत इस्लामी नहीं है। इसी तरीके से अगर मौलाना इलियास कादरी साहब जो हैं अगर सुन्नी बरेलवी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता फिर इस ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा बंदा बरेलवी है, फिर तो कोई बरेलवी नहीं है अगर वो बरेलवी नहीं है। यानी इतनी वाज़ेह दलीलें मौजूद हैं दावत इस्लामी की सुन्नी बरेलवी होने के ऊपर और बद मज़हब के फ़ेली और कौली दोनों रद्द के ऊपर, लेकिन फिर भी लोगों को हसद में इतने आगे बढ़ गए कि उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। अकीदे का इख्तिलाफ वो जिनसे भी है वो है और रहेगा, उस वक्त तक रहेगा जब तक उनका अकीदा इस्लाम के ऐन मुताबिक नहीं हो जाता। कोई ये ना समझे कि मैं कोई नऊज़ुबिल्लाह सुलह कुलियत वाली बात करता हूँ, नहीं नहीं, मेरे खमीर में ये है ही नहीं, सुलह कुलियत है ही नहीं, सवाल ही नहीं होता। जो अल्लाह और रसूल को बुरा भला बोले, मेरे गौस पाक की गुस्ताखी करे, मेरे सहाबा की शान में मतलब बेअदबी करे और फिर हम सब मिलकर काम करें, ना ना ऐसा नहीं हुआ। मैं पत्थर में असल लाले पुरनवार